دونوں مہمان کا بہت ہی استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب میں مقالے کے لیے جنہیں زحمت دینا چاہتا ہوں، میری مراد ڈاکٹر عبدالحی صاحب ہیں، قومی کونسل برائے اردو زبان، نوجوان نسل کے ہر دل عزیز قلمکار، صحافی۔ ان سے میں گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما اراکین مجلس صدارت اور یہاں موجود ملک اور بیرون ملک سے تشریف لائے معزز مہمانان، ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب، ڈاکٹر کاظم صاحب، ڈاکٹر احمد کفیل صاحب اور دیگر خواتین و حضرات۔ میں سب سے پہلے اپنے استاد محترم پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کو اتنے اہم موضوع پر سیمینار کے انعقاد کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عالمی سیمینار میں مقالہ پڑھنے کی دعوت دی۔ ظاہر ہے کہ موضوع ایسا تھا کہ اس پر آسانی سے لکھنا بہت مشکل تھا۔ پروفیسر شہاب عنایت ملک اور پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب نے بھی کل اپنی تقریر میں اس بات کا ذکر کیا تھا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ موضوع روایت سے ہٹ کر ہے اور خواجہ صاحب یوں بھی ایسے اہم کام کرنے کے لیے مشہور ہیں، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور آج وہ پوری دنیا میں اردو زبان و ادب کے فروغ اور ترقی میں پیش ہیں۔ میرے مقالے کا موضوع ہے مہابھارت، ایک عظیم رزمیہ داستان، اردو تراجم کے حوالے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر خدا نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی پرستش کریں اور اچھے و نیک کام کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انسان مختلف مذاہب اور عقیدوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، لیکن ان سبھی مذاہب کی بنیادی تعلیمات ایک جیسی ہی تھیں کہ خدا سب سے بزرگ و برتر ہے اور انسان دنیا میں اچھے عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کچھ اختلافات اپنی جگہ، لیکن سارے مذاہب ہمیں سچائی، امن اور یکجہتی کی ہی تعلیم دیتے ہیں۔ دنیا میں باہمی رواداری اور امن و آشتی کے قیام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے مذاہب کا مطالعہ کیا جائے اور ان کے مذہبی صحیفوں کو پڑھا جائے اور ان کی اچھی باتوں کو عام کیا جائے۔ اسی ضرورت کے تحت اہل علم حضرات نے مختلف صحیفوں کے ترجمے مختلف زبانوں میں کیے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ بھی دنیا کی سینکڑوں زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اسی طرح اردو زبان میں بھی مختلف مذہبی صحیفوں کے تراجم مل جاتے ہیں۔ اردو میں بودھ، جین، عیسائی، ہندو، سکھ اور دیگر مذہبی صحیفوں کے تراجم دستیاب ہیں۔ اردو میں ہندوؤں کے تقریباً تمام مذہبی صحیفوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ ویدوں کا ترجمہ الک پرکاش و صحیفہ شریف کے نام سے ہوا اور ان ویدوں کا فارسی ترجمہ سر اکبر کے عنوان سے ہوا تھا، جسے شہزادہ دارا شکوہ نے کیا تھا۔ اپنشد کا ترجمہ منشی سورج نارائن مہر دہلوی نے کیا تھا، جو 1914 سے 1917 کے درمیان شائع ہوا۔ بھگوت گیتا کے اردو میں درجنوں ترجمے موجود ہیں۔ منشی کنہیا لال عرف الگ دھاری، منشی شیام سندر لال، منشی دیوی پرساد، منشی جگناتھ پرساد، شانتی نارائن، چودھری روشن لال وغیرہ نے گیتا کے ترجمے کیے ہیں۔ اسی طرح گیتا کے منظوم تراجم بھی کئی ہوئے ہیں، جن میں پنڈت پربھو دیال صاحب عاشق، منشی بشیشور پرساد منور لکھنوی، خواجہ دل محمد اور ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کے ترجمے قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر محمد عزیر نے اس سلسلے میں پہلا اہم کام انجام دیا تھا۔ ان کی کتاب اسلام کے علاوہ مذاہب کی ترویج میں اردو کا حصہ کافی اہمیت کی حامل ہے، جو انجمن ترقی اردو علی گڑھ سے 1955 میں شائع ہوئی تھی۔ گیتا کے ترجموں پر وہ لکھتے ہیں، جہاں تک میری واقفیت ہے ہندو مذہب کی کسی دوسری کتاب کا ترجمہ اردو میں اس کثرت سے نہیں ہوا ہے، یہاں تک کہ رامائن کا بھی نہیں۔ مہابھارت کو ہندو مذہب کے مشہور رزمیے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہابھارت کو مہرشی وید ویاس نے لکھا تھا۔ اسے ہندو مذہب میں کافی اہمیت حاصل ہے اور اسے وید پنجم بھی کہتے ہیں۔ پورے مہابھارت میں لگ بھگ 1,10,000 شلوک ہیں۔ یہ ہندوستان کی قدیم ترین داستانوں میں سے ایک ہے۔ مہابھارت اور دیگر رزمیوں کے بارے میں کل پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب نے فراق گورکھپوری کا ایک بیان بھی یہاں پیش کیا تھا۔ اس داستان میں جنگ، محبت اور حکومت و اقتدار کی رسا کشی کو بڑے اچھے انداز میں تحریر کیا گیا ہے۔ اسے سب سے پہلے 1000 قبل مسیح تخلیق کیا گیا۔ مہابھارت چندرونشیوں کے 2 خاندانوں کورو اور پانڈووں کے درمیان ہوئی جنگ کی داستان پر مبنی ہے۔ اس جنگ کے واقع ہونے کے سلسلے میں کئی آراء ہیں۔ کچھ مورخین اسے 3000 قبل مسیح بتاتے ہیں تو کچھ اسے 1200 قبل مسیح بتاتے ہیں۔ یوں تو اسے ریشی وید ویاس کی تخلیقی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ اختلافات ہیں۔ نند کشور وکرم صاحب نے لکھا ہے،
महाभारत हिंदू धर्म का एक मारूफ रज़्मिया है जो उस दौर के मशहूर ऋषि वेद व्यास जी की तसनीफ़ मानी जाती है, मगर कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि महाभारत किसी एक शख्स की तसनीफ़ नहीं बल्कि तकरीबन 8-9 साल तक मुख्तलिफ उलमा इस रज़्मिये में श्लोकों का इजाफा करते रहे, जिससे इसके श्लोकों की तादाद बढ़कर 1 लाख तक पहुँच गई। इसके मुसन्निफ़ीन में विशम्पायन और सौती का नाम भी लिया जाता है, ताहम इसमें कोई शक नहीं कि इसके बुनियादी और असली मुसन्निफ़ वेद व्यास ही माने जाते हैं। उर्दू में महाभारत के यूँ तो कई तर्जुमे हैं, लेकिन मैंने अपने मकाले में सिर्फ उन तर्जुमों का जिक्र किया है जिन्हें मैंने खुद देखा है। चूँकि ये मौजू रज़्मिया शायरी के हवाले से है, इसलिए मैंने महाभारत के सिर्फ उन्हीं हिस्सों तक इस मकाले को महदूद रखने की कोशिश की है। मुझे महाभारत का पहला तर्जुमा पंडित हरगोविंद साहब शागिर्द सैयद अब्बास अली साहब रिंद का मिला, जो फैज़-ए-आम प्रेस लाहौर से 1910 में शाये हुआ है। एक दिलचस्प और तारीख़ी वाक़या नाटक महाभारत के उन्वान से छपी ये किताब बेहद बोसीदा हालत में मिली। किताब के आगाज़ के सफ़ात में कुछ किताबों के इश्तहारात दिए गए हैं। इस तर्जुमे के दीबाचे में पंडित जी ने लिखा है कि इस तख्लीक का मकसद ये है कि हमारे हिंदू भाई धर्म के शरबत से प्यासे न रहें और इस नाटक को पढ़ें ताकि उनके पाप धुल जाएं। यह तर्जुमा ड्रामे की शक्ल में है और किरदारों की ज़बान से मुकालमे अदा कराए गए हैं। इसमें कौरव और पांडवों के दरमियान हुई जंग के मंजर को ही पेश किया गया है। तकरीबन 128 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ड्रामा बेहद अच्छी ज़बान में तहरीर किया गया है। 3 अबवाब और 20 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा अपने वक्त में बहुत मकबूल हुआ था। ड्रामे में जगह जगह मुकालमों के साथ शेरी अंदाज में बात कही गई है। इस नाटक के तीसरे बाब के 18वें सीन की शुरुआत कुरुक्षेत्र के मैदान जंग से होती है। भीष्म जी और दुर्योधन शायराना अंदाज में जंग के मैदान में वारिद होते हैं। भीष्म का तेवर देखें। ये बान पर बान क्या आबदार आज, मैं तो दुश्मन का करूँगा शिकार, बेमारे उनके नहीं होगा बेड़ा पार, आवे इस बार करूँ सीना पार। जवाब में दुर्योधन का अंदाज ये है, दिखाओ अब जोर अपना, सीखा है हर फन, कर दो सर दुश्मन का अब तो गर्दन से तेग जन, ऐ शेर दिल शेरो न ठहरो गोविंद पाओगे तुम दहन, सब मारो न हारो गोले छोड़ो दनादन। इस तर्जुमे में कहीं कहीं बेहद मुश्किल और फारसी आमेज उर्दू का इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं आसान और आम फहम हिंदी भी मिल जाती है। मनोकामना, पापी, सुहाग, बिनती, सिंगार जैसे अल्फाज हैं तो साथ में जानिसार, इंतज़ार, फ़िक्र, फरमाइए, ख़बरदारी जैसे अल्फाज भी हैं जो उस वक्त की मिली जुली ज़बान कही जा सकती है। कहीं कहीं ज़बान बेहद गुंजलक भी हो गई है। मजहबी सहीफ़ों के ज़्यादातर तराजीम में ये कमी है कि ज़बान बेहद गुंजलक और नामानूस इस्तेमाल की जाती रही है, या हो सकता है कि उस वक्त ऐसी ही ज़बान को बेहतर ज़बान तस्वुर किया जाता हो। इस सिलसिले में प्रोफेसर अब्दुल हक भी लिखते हैं, गीता के अलावा दूसरी किताबों के तराजीम में अदबी उसलूबकारी का फ़न तकरीबन नापैद है। ये तराजीम सीधे सादे और सपाट अंदाज लिए हुए हैं। इनमें जाज़बियत या शेर व नक़्बा का फुक़दान है और मजहबी इस्तिलाहात का कसरत इस्तेमाल इनको बोझल बना देता है। महाभारत का एक तर्जुमा मखज़न महाभारत के उन्वान से बाबू ज्वाला प्रसाद भार्गव ने किया था, जो आगरा से शाये हुआ था। ये तर्जुमा 4 जिल्दों पर मुश्तमिल था। एक तर्जुमा रामकृत महाभारत मुतरजिम मुंशी श्री राम कायस्थ माथुर देहलवी का है, जिसका पहला एडिशन 1895 में मेरठ से मंजर-ए-आम पर आया। बाद में ये मतबा मुंशी नवल किशोर लखनऊ से 1914 में शाये हुआ। कुल 34 अबवाब पर मुश्तमिल इस महाभारत के तर्जुमे का रस्मुल ख़त तो उर्दू या फ़ारसी हो सकता है, लेकिन ज़बान हरगिज़ उर्दू नहीं है। अबवाब को अध्याय कहा गया है। पहला अध्याय कौरव और पांडवों दोनों की सेनाओं के कुरुक्षेत्र में आने पर है। मकाले की तवालत की वजह से मैं यहाँ इक़्तिबासात नहीं दे रहा हूँ। उर्दू में पहला मंजूम तर्जुमा मुंशी तोताराम शायान का था, जो मुंशी नवल किशोर के मतबा कानपुर से छपा था। ये तर्जुमा काफ़ी मकबूल हुआ। आगाज़ बिस्मिल्लाह से होता है और महाभारत का आगाज़ हमद से होता है। हमद के बाद सबब तालीफ़ है। मैदान जंग से मुताल्लिक़ कुछ अशार देखें। लिया भीम ने तीरो खंजर से काम, दहन ज़ख्म के जिस्म पर खून चकां, उठाया लड़ाई से फ़ौजों ने हाथ, वो मजरूह था दिल में अपने उदास, फिरी अपने खेमों में जब वक्त शाम, सितारों के लश्कर को लेकर कमर, किए कत्ल बस एक दम में हज़ार, कोई कसरत ज़ख्म से नीम जान, कोई सो गया बिस्तरे खाक पर, कोई तेग को तौल कर रह गया। इस पूरे मंजूम तर्जुमे की ज़बान फ़ारसी आमेज़ और ज़ैली उन्वानात को तो फ़ारसी में ही तहरीर किया गया है। महाभारत को शेरी पैराए में ढालने में मुरस्सा व मुसज्जा ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो आम इंसान की ज़बान तो नहीं हो सकती। तर्जुमे को पढ़कर मुंशी तोताराम शायान की इल्मी लियाकत का अंदाज़ा होता है कि उनकी शायरी यकीनन आला दर्जे की होगी। ये वही मुंशी तोताराम हैं जिन्होंने दास्तान अमीर हमज़ा को उर्दू के मंजूम कालिब में ढाला था, जो तिलिस्म शायान के नाम से शाये हुई थी। एक आसान तर्जुमा बउनवान बच्चों के लिए महाभारत सुदर्शन साहब का मिलता है, जो पंजाब प्रिंटिंग वर्क्स बुक डिपो से छपा था। ये किताब कुल 11 अबवाब पर मुश्तमिल है।
लाख का महल, द्रौपदी का स्वयंवर, लड़ाई की तैयारियां, भीष्म की मौत, अभिमन्यु की बहादुरी, पांडवों की फतह, स्वर्ग और नर्क जैसे असबाक में इसे तकसीम किया गया है। इस तर्जुमे की ज़बान महाभारत के दीगर तर्जुमों के मुकाबले काफ़ी आसान लगी। बच्चों के लिए महाभारत लिखने वाले सुदर्शन साहब मशहूर अफसाना नवीस थे और इससे कबल रामायण, पारस, रुस्तम और सोहराब, फुलवती वगैरह बच्चों के लिए आसान और आम फहम ज़बान में लिख चुके थे। ये किताब भी नसीहत भरे अंदाज में लिखी गई है और किताब में बच्चों को दिलचस्प अंदाज में अच्छे कामों की तलकीन की गई है। इस तर्जुमे की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि तर्जुमा खालिस उर्दू ज़बान में है। इसमें हिंदी या संस्कृत ज़बान का सहारा नहीं लिया गया है। जंग का एक मंजर देखें। अर्जुन और कर्ण की लड़ाई शुरू हुई। ये दोनों मुकाबले के बहादुर थे। जिस वक्त वो आमने सामने हुए, सारी फौज ने लड़ना छोड़ दिया और सब उन दोनों बहादुरों की लड़ाई देखने लगे। दोनों की कमानों से तीर इस तरह निकलते थे जिस तरह बिलों से जहरीले सांप निकलते हों। आखिर ये लड़ाई खत्म हुई और कर्ण अर्जुन के हाथ से मारा गया। कर्ण के मरते ही दुर्योधन की फौज में मातम बरपा हो गया और सबको अपनी शिकस्त का यकीन हो गया। महाभारत का एक तर्जुमा बउनवान मुकम्मल वाक़यात महाभारत हुआ था। इसके मुसन्निफ ठाकुर सुखराम दास चौहान थे। ये तर्जुमा 1910 में राजपूत प्रिंटिंग वर्क से शाये हुआ था। किताब का आगाज़ उस दौर में कई अखबारात में उस नावल पर छपे तबसरों से हुआ है। पर्ची आ गई है तो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। कई तराजीम के देखने के बाद महाभारत के इस तर्जुमे को देखना एक खुशगवार हवा के झोंके जैसा था। कुछ अशार नमूने के तौर पर मुलाजा करें। तेगें सिपर के साथ कटी, खुद सर के साथ, सीना कमर के साथ कटा, दिल जिगर के साथ। हलचल ये थी कि बाप ने ठहरा पैसर के साथ, इस मार्के में छूट गए उम्र भर के साथ। भागे शरीर किलत व मनसब को छोड़कर, रूहें रवाना हो गईं कालिब को छोड़कर। इसी तरह एक तर्जुमा लालचंद फलक का भी मिलता है जो 224 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये तर्जुमा भी महाभारत के बेहतरीन तर्जुमों में शुमार किया जा सकता है। एक तर्जुमा मुंशी द्वारका प्रसाद उफुक लखनवी का है जो जुलाई 1933 में लाहौर से शाये हुआ था। महाभारत का एक मंजूम तर्जुमा जलाल अफसर समरी का भी है जो 1989 में छपा था। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल ये मुख्तसर मंजूम तर्जुमा मंजूम तर्जुमों में सबसे बेहतर लगा। हम बारी ताला से शुरुआत होती है और फिर मंजूम महाभारत का आगाज़ होता है। इसे तर्जुमा कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि हकीकतन ये उर्दू में ही लिखी गई तख्लीक है जिसका मौजू महाभारत की जंग को मनाया गया है। कुछ अशार देखें। कौरवों की फौज का क्या हाल था आगे सुने, मच रही थी खलबली हर समत उनकी फौज में। भीम ने जिस दम घुमाई जंग में अपनी गदा, रज़्मगाह में एक तरह का हश्र बरपा हो गया। बर्छियाँ, ढालें, कटारें टूट कर गिरने लगीं, मौत से बस रूहें जा जा कर गले मिलने लगीं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की सरजमीन है और हम इसीलिए सारी दुनिया में मशहूर हैं कि मज़हब और ज़बान अलग होने के बावजूद हिंदुस्तानियत और कौमियत का जज्बा हमें आपस में जोड़े रखता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान भाईचारे और इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ के लिए मजहबी सहीफ़ों का एक दूसरे की ज़बानों में तर्जुमा होता रहा है। मारूफ फ़लसफ़ी अल-बैरूनी ने किताबुल हिंद लिखकर हम हिंदुस्तानियों पर बड़ा एहसान किया था और दुनिया वाले पहली दफ़ा हिंदुस्तान और यहाँ की तहज़ीब और तमद्दुन से आगाह हुए थे। इसी तरह बादशाह अकबर के दौर में हिंदुओं के कई मजहबी सहीफ़ों के तराजीम फ़ारसी में हुए जिनमें महाभारत का तर्जुमा रज़्मनामा के उन्वान से हुआ था जिसे मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इसी तरह अरबी में भी महाभारत का तर्जुमा 11वीं सदी के आसपास हो गया था। मुग़लों के बाद भी हिंदुस्तान में फ़ारसी का ज़ोर था और कदीम मजहबी किताबों में फ़ारसी ज़बान ज़्यादा है। लेकिन बाद के बरसों में जब उर्दू का इर्तक़ा हुआ तो तर्जुमे की सूरत में जो तहरीरें हमारे सामने आईं इसमें हिंदुस्तानी ज़बान नज़र आती है जो आम बोलचाल की उर्दू ज़बान थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हई साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत मकाला और पुरमग़ज़ मकाला पेश किया, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है इसलिए पूरा मकाला हमें सुनने का मौका नहीं मिला। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब ये मकाले किताबी शक्ल में हम ज़रूर उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। आप बहुत ही पुरमग़ज़ मकाला पेश किया है और आपके मकाले और अल्फाज सुन करके ऐसा महसूस हो रहा था कि बोलते रहना क्योंकि तुम्हारी बातों से, बोलते रहना क्योंकि तुम्हारी बातों से लफ्ज़ों का ये बहता दरिया अच्छा लगता है।